بہت پرانے زمانے میں سلطان ظاہر ایک طاقتور اور محبوب بادشاہ تھا۔ اس نے ملکہ مہر النساء سے شادی کی جو حسن، وقار اور حکمت کی مثال تھی۔ وہ خوش اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی صرف ایک بیٹی تھی، شہزادی مہپارہ، جو خوبصورت، ذہین اور غیب العیش میں محل نزاکت اور خوشحالی کا ایک شاندار نمونہ تھا۔ سلطان ظاہر کے ارد گرد وفادار درباری تھے اور شاہی باغات میں قیمتی پودے اور نہات نینے تھا، لیکن سب سے حیرت انگیز چیز ایک خاص مور تھا جو شاہی باغچے میں رکھا گیا تھا۔ یہ مور کوئی معمولی پرندہ نہیں تھا۔ ہر صبح جب وہ اپنے پروں پھیلانے لگا، اس کے ہر پر سے ہیرے، لال، اور یہ پرندہ در حقیقت سلطنت کی دولت کا سب سے بڑا خزانہ تھا۔ لیکن تقدیر نے اچانک پلٹی کھائی۔ ملکہ مہر النساء کو ایک جان لیوا بیماری نے گھیر لیا۔ علاج ہوئے، دعائیں مانگی گئیں، لیکن وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ سلطنت کو وارث چاہیے۔ میں تمہیں صرف ایک بیٹی دے سکی، شہزادی مہپارہ۔ مجھے تم سے صرف ایک وعدہ چاہیے، جب تک تمہیں مجھ سے زیادہ خوبصورت اور کامل شہزادی نہ مل جائے، کسی اور سے شادی مت کرنا۔ الفاظ ختم ہو چکے تھے، بس آنکھوں میں نمی اور ہاتھوں کا لمس باقی رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ملکہ مہر النساء نے آخری سانس لی۔ سلطان ظاہر ٹوٹ کر رہ گیا۔ کچھ عرصے بعد سلطنت کے اہم لوگ جمع ہوئے اور سلطان کے سامنے حاضر ہوئے۔ غم، آنسو اور اداسی اس کی زندگی بن گئی، دن ہو یا رات۔ سب کی ایک ہی مانگ تھی، سلطنت کو وارث چاہیے، حسن نہیں۔ انہوں نے سمجھایا کہ اگر شہزادی مہپارہ کسی پردیسی سے شادی کرتی ہے تو سلطنت کمزور ہو جائے گی۔ یہ سن کر سلطان ظاہر خاموش رہ گیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس معاملے پر غور کرے گا۔ چنانچہ پوری سلطنت میں مناسب شہزادیوں کی تلاش شروع ہوئی۔ لیکن کوئی بھی مچکا مہر النساء کے حسن اور وقار کے قریب بھی نہیں پہنچ سکی۔ فیصلہ کرنے کے بجائے سلطان ظاہر اپنے غم میں اور ڈوب گیا۔ اس کی عقل اس پر چھانے لگی۔ اس نے ماضی اور حقیقت کا فرق بھول دیا۔ اس فریب میں جیتے ہوئے اس نے مہپارہ کو حکم دیا کہ وہ اس سے شادی کے لیے راضی ہو جائے۔ یہ سن کر شہزادی مہپارہ کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ پاک اور معصوم تھی۔ وہ اپنے باپ کے پیروں میں گر پڑی، منت کرتے ہوئے کہ وہ ایسی باتیں نہ کہیں۔ اس نے پوری طاقت سے کوشش کی کہ وہ اسے اس غیر فطری خواہش پر مجبور نہ کریں، لیکن سلطان ظاہر اپنے جنون میں اس کی جدوجہد کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے ایک پرانے جوگی کو بلایا تاکہ شہزادی کا ضمیر تسلی پائے۔ یہ جوگی طاقت کا بھوکا تھا، پاکیزگی کا نہیں۔ اس نے سچ اور طہارت کی جگہ سلطان کی خوشی کو ترجیح دی۔ گہری ذلت اور بے بسی شہزادی مہپارہ کو آخر کار اپنی دھرم ماں ستارہ پری یاد آئی۔ اس نے ان سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا۔ اسی رات وہ ایک چھوٹی سی پیاری گاڑی میں روانہ ہوئی۔ مجھے سب کچھ پہلے سے پتا ہے میری بچی، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے اس خاص مور کی جلد اور پر مانگو۔ ہم سلطان ظاہر کو ایک ایسا امتحان دیں گے
जो उसे हैरान कर दे, वो मोर जो उसे इतनी खुशी और दौलत देता है। शहजादी के लिए नजात की राह था, क्योंकि वो जानती थी उसका बाप कभी उस मोर की कुर्बानी नहीं दे सकता। वो सुल्तान जाहिर के पास गई और अपनी नई ख्वाहिश जाहिर की। अब्बा जान, मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। सुल्तान जाहिर कुछ लम्हों के लिए खामोश रहा। मैं तभी आपकी दुल्हन बनूंगी जब आप मुझे उस खास मोर की खाल और उसके तमाम पर ला कर दें। उसकी बातें सुनकर सुल्तान जाहिर कुछ देर गुमसम रहा, लेकिन आखिरकार उसकी जिद गालिब आई। बदनसीब मोर की कुर्बानी दी गई और उसकी खाल और पर शहजादी महपारा के पास बाकायदा ले आए गए। अब शहजादी महपारा जानती थी कि अपने नुकसान को टालने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं। उसी वक्त उसकी धर्म माँ सितारा परी नजर आई। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम वक्त है। अपने आप को इस खाल और प्रून में लपेट लो, महल छोड़ दो। शहजादी महपारा ने अपनी धर्म माँ को बार बार गले लगाया, दुआ करते हुए कि वो उसे। फिर उसने अपने आप को चूल्हे की राख से ढांक लिया और छुपा लिया। बदसूरत खाल और परून में लिपटी हुई वो शानदार महल से निकल पड़ी। शहजादी महपारा के गायब होने से महल में हुलचल मच गई। सुल्तान जाहिर, जो एक शाही ज़ियाफत की तैयारी कर रहा था, बेहद परेशान हुआ। उसने 200 सवार और हजारों सिपाही अपनी बेटी की तलाश में भेजे, लेकिन सितारा परी ने उसे सबकी नजरों से छुड़ा दिया और वो हर कोशिश से बच निकली। इस दौरान शहजादी महपारा दूर दूर भटकती रही। आखिरकार वो एक खूबसूरत शहर पहुंची, जहां शहर के दरवाजे पर एक छोटा सा बाग था। बाग की मालिकन को किसी की जरूरत थी जो सब्जियों, फूलों और परिंदों की देखभाल करे। क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? थकी हुई शहजादी महपारा ने खुशी से मान लिया। उसे रेसूखाने के एक कोने में जगह दी गई, जहां पहले कुछ दिनों तक नौकर लोग उसकी शक्ल पर मजाक करते रहे। लेकिन जल्दी ही वो अपने मजाक से थक गए। शहजादी महपारा इतनी मेहनती और ज़हीन थी कि बाग की मालकन ने उसे अपनी निगरानी में ले लिया। वो सब्जियों की देखभाल करती और फूलों को पानी देती। हर काम जो वो करती इतना कामिल था कि लगता था जैसे वो हमेशा से ये करती रही हो। उसने फैसला किया कि वो अपने खूबसूरत कपड़े सिर्फ छुट्टी और इतवार को पहनेगी, और वो खुश थी ये जानकर। एक बार शहजादी महपारा एक साफ चश्मे के पास बैठी। पानी में अपना अक्स देखकर उसे दुख हुआ। एक छुट्टी के दिन मोर पंख अपना सितारों जैसा लिबास पहनकर बैठी थी। बाग की मालकिन का बेटा, एक नौजवान और खूबसूरत शहजादा आरमान शिकार। रात के खाने के बाद उसने बाग की सैर शुरू की। एक अंधेरी गली में पहुंचकर उसने तजस्सुस से एक बंद दरवाजे की चाबी की सुराख से झांका। वहां उसकी नजरों के सामने एक शहजादी का मंजर था जो उसे हैरान कर गया। खूबसूरत, एक शानदार लिबास में, इतनी शान और वकार के साथ कि वो देवी लगती थी। उसका जज्बा इतनी शिद्दत से था कि अगर वो इज्जत का ख्याल ना रखता तो वो दरवाजा तोड़ देता। बाद में उसे पता चला कि ये वही नौकरानी थी जिसे सब मोर पंख कहते थे, क्योंकि वो हमेशा वही खाल पहनती है। वो इतनी गंदी और बेपरवाह थी
और लोगों ने उसे फूलों की देखभाल के लिए सिर्फ तरस खाकर रखा था। मालिकीन का बेटा उस जवाब से मुतमईन नहीं था। जानता था कि आम लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते। वो वापस अपने बाप सुल्तान के महल में गया। लेकिन चाबी की सुराख से देखी हुई खूबसूरत शहजादी की तस्वीर उसके जहन में घूमती रही। उसके इश्क की शिद्दत इतनी थी कि वो उसी रात शदीद बुखार में तपने लगा और मौत के करीब पहुंच गया। हकीम कहने लगे कि ये तबाहकुन बुखार शदीद गम या इश्क की वजह से है। मालकिन ने अपने बेटे की मन्नत की और वादा किया कि अगर वो कुछ चाहता है, चाहे खजाना हो या शहजादी। अम्मी, अगर आप चाहती हैं कि मैं कुछ ख्वाहिश करूं, तो मैं चाहता हूं कि मोरपंख मेरे लिए शरबत बनाए। मालिकिन ने एक अफसर को हुक्म दिया, जाओ मोर पिंक को कहो कि शहजादे के लिए शरबत तैयार करे। कासिद बाग की तरफ दौड़ा, जाओ शहजादे के लिए शरबत तैयार करो। ये मालिकिन का सबसे अहम हुक्म है। अंदर से मोर पंख खुश थी। शायद उसने पहले ही शहजादे को देख लिया था। अब उसे मौका मिला। उसने जल्दी से मोर की खाल उतारी, अपने बाल संवारे और शरबत बनाना शुरू किया। बेहतरीन फलों, आतर और शहद का इस्तेमाल करते हुए। काम करते वक्त उसकी कलाई का कुंगन गलती से शरबत के बर्तन में गिर गया। उसमें मिल गया। जब शरबत तैयार हुआ, उसने वापस मोर की खाल लिपेट ली और कासिद को दे दिया, शहजादे के बारे में पूछते हुए। शहजादे शरबत छीना और इतनी जल्दी पीना शुरू किया कि मौजूद हकीम फौरान चीखे, इतनी जल्दी शरबत मत पियो, वो कंगन लगभग नगल ही लेता। शहजादे की नजरें फौरान सोने के कंगन में जुड़ी नीलम पर पड़ी। इतना छोटा कि वो सिर्फ दुनिया की सबसे खूब। उसने उस कंगन को 1000 बार चूमा, उसे तकिए के नीचे रख दिया और हर लम्हा उसे महसूस होता कि कोई नहीं। उसकी बेचैनी और फिक्र इतनी बढ़ गई कि उसने शहजादी को देखने की साजिशें शुरू कर दी। लेकिन वो न पूछ सकता था कि मोर पंख आए, न चाबी की सोरख से देखी हकीकत का जिक्र कर सकता था। वो डरता था कि लोग उसे ख्याली समझकर हंसेंगे। अंदर से शहजादी महपारा खुश थी। शायद उसने पहले ही शहजादे को मालकिन, बेटे को एक और तेज बुखार पैदा कर दिया। मलका का बेटा एक शहजादा था और वो एक सुल्तान की बीवी थी। इसीलिए वो हकीम ने चिपके से मलकन को बताया कि शहजादे की बीमारी इश्क की वजह से है। फौरन मलका और परेशान सुल्तान अपने बेटे के पास दौड़े। मेरे शहजादे, मेरे प्यारे बेटे, जिसे तुम चाहते हो उसका नाम लो। हम कसम खाते हैं हम तुम्हें दे देंगे। अम्मी और अब्बा, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ऐसी शादी करूं जिसे आप मंजूर ना करें। फिर उसने तकिए से नीलम का कुंगन निकाला और कहा, अम्मी, मैं उससे शादी करना चाहता हूं जिसके कलाई पर यह कुंगन आए। सुल्तान और मलका ने कंगन को हैरान होकर देखा और राजी हुए कि यह जरूर किसी नेक खानदान की बेटी का होगा। फिर सुल्तान ने अपने बेटे को गले लगाया, उसकी सेहत के लिए दुआ की और बाहर निकलकर हुक्म दिया कि पूरे शहर में नुकारे। जिसकी कलाई पर ये कंगन आए वो शहजादे की दुल्हन बनेगी। वो मोर पांख की शहजादी कहाँ है जिसने मेरे लिए शरबत बनाया था? नहीं, उसे नहीं बुलाया गया। वो इतनी गंदी और मामूली लगती है कि कोई उस पर नजर भी नहीं डालता। फौरन मोर पंख की शहजादी को ले आओ। शहजादी महपारा नकारों और मुनादियों को सुनकर जानती थी कि ये हलवा कंगन की वजह से है। मैं तुम्हें शहजादे के पास ले जा रहा हूं। महपारा, ये तुम हो जो मैंने दरवाजे की सुराख से देखी थी? जी हजूर। अपना हाथ दिखाओ।
ये तो बिल्कुल इसी के कलाई पर फिट हुआ। इसी वक्त मोर की चमड़ी उसके कंधों से गिर गई। तभी सितारा परी जाहिर हुई और शहजादे को महपारा की पूरी सच्ची कहानी बताई। महपारा ने ऐलान किया कि वो शहजादे से शादी नहीं करेगी जब तक उसके बाप की रजामंदी ना हो। सुल्तान और मलका बहुत खुश हुए और शहजादा अरमान का महपारा के लिए प्यार उसकी खूबियों और हुस्न देखकर और बढ़ गया। चुनांचे पहला दावतनामा इसके बाप को भेजा गया, लेकिन दुल्हन का नाम नहीं बताया गया। जैसे सितारा परी ने मशवरा दिया था, दुनिया भर के मुख्तलिफ सुल्तान शादी मनाने आए। कुछ पालकी में सबसे ज्यादा शानदार और बावकार महपारा के बाप थे। वो अब होशमंद हो चुके थे और अपनी दूसरी बेली के साथ रहे थे, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी। शहजादी अपने बाप की तरफ दौड़ी, जिन्होंने फौरान उसे पहचान लिया और गले लगाया। शादी का जलूस और जश्न तकरीबन 3 महीने तक जारी रहा। हमारा प्यार हमेशा कायम रहेगा। और अगर आप हमारी कहानी को मज़ीद देखना चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।